Hello students, welcome to the maths class. As you all are having your test today of this chapter rational numbers, so let us take a quick revision of this chapter. First of all, first topic that I am going to discuss is natural numbers. All the counting numbers are known as natural numbers. All the numbers which you can count, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till infinite, these counting numbers are known as natural numbers. Okay, whole numbers 0, 1, 2, 3, 4. That means all the natural numbers including 0 as well are known as whole numbers. सारे जितने natural numbers होते हैं 1, 2, 3, 4 and so on, I said they are natural numbers ना. अगर 0 भी include कर लीजिए, natural numbers में 0 नहीं आता, लेकिन whole numbers में 0 आता है. That means all the natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on including 0 also are known as whole numbers. Third one is integers. All the negative numbers, 0 and all the positive numbers, they in combined form together are known as integers. What I am trying to say is, if you see here, hide these negative numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on. You can call these as whole numbers ना. whole numbers क्या होते हैं? 0 हो जिसमें 1, 2, 3, 4 so on जितने natural numbers होते हैं, जितने counting number सब मिलाकर whole numbers होते हैं. Yes. अब इसी में आप नेगेटिव नंबर्स भी कंसिडर कर लीजिए. देखिए 1 का नेगेटिव क्या होगा -1, 2 का नेगेटिव क्या होगा -2. सो दैट मीन्स सारे होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो they are together are known as integers. That means integers include negative numbers, positive numbers and 0 in combined form. Okay, fractions. Numbers in the form of a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. When you get the number in the form of a upon b, where a is the numerator, b is the denominator. Fine. And these a and b are whole numbers. These numbers which you take in fractions, in the numerator you take a, in the numerator you take b. अब a b की जगह कोई numbers होंगे, हम imaginary consider कर रहे हैं कि numerator में a और denominator में b है. And these a and b in case of fraction should be whole numbers. फ्रैक्शंस के केस में ये होल नंबर्स होते हैं ए और बी. ए की जगह पे आप कोई भी नंबर लेंगे लेकिन वो होल नंबर होना चाहिए. बी की जगह पे आप कोई भी नंबर लेंगे बट कंडीशन वो होल नंबर ही होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं लेंगे. ओके, सो दिस नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. दीज आर नोन एज फ्रैक्शंस. Rational numbers. As the chapter name is rational numbers. So what are rational numbers? Numbers in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. When you get the numbers in the form of p upon q where p is the numerator value and q is the denominator value, and these p and q should be integers and q, that is denominator, should never be equal to 0. denominator 0 नहीं होना चाहिए. So these type of numbers are known as rational numbers. Now you can see the difference. In case of fraction what I told कि a और b आपके whole numbers होने चाहिए, and in case of rational numbers what I told कि p और q आपके integers होने चाहिए. Fine. Moving on, there are two types of integers, positive rational there are two types of rational numbers, positive rational numbers and negative rational numbers. Okay, as I told you rational numbers are in the form of p upon q. So positive rational numbers कौन होंगे? जब आपको p और q दोनों में या तो पॉजिटिव साइन हो या फिर दोनों में नेगेटिव साइन हो. दैट मीन्स व्हेन द साइंस आर सेम बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन है तो डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन होना चाहिए. अगर न्यूमरेटर नेगेटिव साइन के साथ है तो डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव साइन होना चाहिए. दैट मीन्स व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइंस, दोज रेशनल नंबर्स आर नोन एज positive rational numbers. And when the numerator and denominator have different signs, मान लीजिए न्यूमरेटर पॉजिटिव साइन के साथ है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव साइन के साथ है डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए. सो दिस इज अ सिचुएशन इन केस ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स. अगर आपको मैंने कह दिया 2/3 या फिर -2/-3, सो देखिए इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव है, सेम साइंस है ना. यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन पॉजिटिव है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन नेगेटिव है. तो इस तरह के रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. अगर यहीं पे कुछ ऐसा केस हो जाता कि इस केस में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव. अब इसमें देखिए फाइन, जब पॉजिटिव रहता है तो हम लगाते नहीं है, वैसे साइन यूजुअली लगा नहीं होता. आप यू अंडरस्टूड रहता है कि अगर साइन नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव है. ओके, सो देखिए इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है.
और इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. सो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साइंस अलग अलग है ना दोनों केस में. दैट मीन्स दे आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. What is absolute value? When you are given a rational number and you are asked to take out the absolute value of that rational number, write that rational number in between two vertical lines. Draw two vertical lines. Write that rational number between them, between the lines, and out of that write the numbers without sign. Means absolute value of a number is the number without sign. कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया, आपसे कहा गया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, तो आप उस नंबर पर से साइन हटा देंगे. जब साइन हटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है. फॉर एग्जांपल अब मैंने यही एग्जांपल लिया है, इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे 2/3. कुछ इस तरह से लिखेंगे लाइंस के अंदर, इसको अलग अलग करेंगे -2/3. अब जब हम फाइनल एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो साइंस हटा देते हैं. विदाउट साइन जो लिखा जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रेशनल number. Equivalent rational numbers. When one rational number is obtained from another, they are said to be equivalent. When you obtain one rational number using different rational number, using one another rational number, then that those two rational numbers are together known as equivalent rational number. जब आप कोई एक रेशनल नंबर किसी दूसरे रेशनल नंबर की मदद से निकालते हैं, या तो आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं या तो आप उसमें डिवाइड करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके आप दूसरा रेशनल नंबर ऑब्टेन करते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ क्वेश्चन. एक्सप्रेस -9/31. -9/31 एक रेशनल नंबर है. यस इट इज. एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर. कहा जा रहा है इसका यूज करिए और एक रेशनल नंबर निकालिए जिसका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो. सो हमने देखा -9/31 में न्यूमरेटर जो -9 है वो निगेटिव है, माइनस है. सो हमने क्या किया, इसमें -1 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया. जब हम रेशनल नंबर के केस में किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं. फाइन. सो -9 × -1 विल गिव यू 9. 9 1 जा 9 और माइनस इंटू माइनस इज प्लस. नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस होता है. सो 9 आ गया. 31 इंटू -1, 31 इंटू 1 विल गिव यू 31. और क्योंकि ये 31 के पास प्लस साइन था, प्लस इंटू माइनस साइन विल गिव यू माइनस. सो देखिए हमें कंडीशन क्या दी थी क्वेश्चन में कि हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए. अब डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर नेगेटिव है ना, उससे कोई मतलब नहीं. कहा गया था डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर पॉजिटिव होना चाहिए. डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया ना. सो अब देखिए आपने इस रेशनल नंबर का यूज करके इसको निकाला है ना, इसकी मदद से ये निकाला है ना. सो दीज टू आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टुगेदर. Like this, there are many types of questions given in your exercise related to equivalent rational numbers. You have to focus on each and every question. You can get any type of question in your test, and plus focus on the theory and conceptual part also. You can get questions from there also.